اب بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تو مقبوضہ وادی میں کرفیو اور جبری پابندیوں کو 211 روز بیت گئے۔ وادی میں غربت و افلاس کا دورہ ہے اور کوئی پرسان حال نہیں۔ عالمی برادری بھی جان بوجھ کر چشم پوشی کر کے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ دنوں پر دن، ہفتوں پر ہفتے اور مہینوں پر مہینے گزر گئے۔ دنیا میں کیا کچھ بدل گیا، لیکن 6.5 ماہ سے تکالیف سہتے نہتے مظلوم کشمیری مسلمانوں کی حالت نہ بدل سکی۔ 90 لاکھ مظلوم کشمیری وہی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بھارتی قابض فورسز نت نئے مظالم اور اوچھے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کو آزادی سے دور رکھنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا ہے۔ بھوک پیاس سے نڈھال بچے، بڑے، بوڑھے اور خواتین لے کے رہیں گے آزادی، مل کے رہے گی آزادی اور حق ہے ہمارا آزادی کے نعرے پر قائم ہیں۔ قابض فورسز نے وادی کو چھاونی بنا ڈالا، مارکیٹیں بند، بازار سنسان، دکانیں ویران، تعلیمی اداروں پر تالے، سڑکوں پر ہو کا عالم اور ٹریفک غائب ہے۔ چوک چوراہے خاردار تاروں سے اٹے پڑے ہیں، جبکہ عالمی برادری اور مہذب اقوام کہلانے والے امریکہ، برطانیہ اور یورپ بھی ذاتی مفادات کی خاطر چپ سادھے بیٹھے ہیں۔ OIC سیکریٹری جنرل کے نمائندہ خصوصی برائے جموں کشمیر وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق OIC سیکریٹری جنرل کے نمائندہ خصوصی برائے جموں کشمیر 6 مارچ تک پاکستان اور آزاد کشمیر کے دورے پر ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق 7 رکنی OIC وفد کو مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ OIC وفد لائن آف کنٹرول کا دورہ بھی کرے گا، جہاں وہ بھارتی فائرنگ سے شہری آبادی کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا OIC وفد کا دورہ 5 اگست کے بھارتی یک طرفہ اقدامات کے تناظر میں ہے۔ OIC نے کشمیری عوام کی جدوجہد میں ان کی مکمل حمایت کی۔ OIC نے 1994 میں اس سلسلے میں ایک کانٹیکٹ گروپ بھی قائم کیا۔ انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس کمیشن نے مظالم کی مذمت میں کئی بیانات جاری کیے۔ 5 اگست کے بعد OIC کانٹیکٹ گروپ کے 2 اجلاس بھی ہو چکے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ناانصافی کی ایک اور اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ بھارتی اعلیٰ عدالت نے انتہا پسندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیر کی متنازع حیثیت کا کیس ہی سننے سے انکار کر دیا۔ عدالتیں انصاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن بھارتی اعلیٰ عدالت ناانصافی میں مشہور ہے۔ بھارت کی اعلیٰ عدالت نے کشمیریوں سے پھر ناانصافی کر ڈالی اور کیس ہی سننے سے انکار کر دیا۔ بھارتی عدالت نے انتہا پسند مودی سرکار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے اور وادی کشمیر کو وفاق کے زیر انتظام 2 اکائیوں میں تبدیل کرنے کے خلاف کیس کی سماعت کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ درخواست گزاروں نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف دائر پٹیشن کو لارجر بینچ بھیجنے کی استدعا کی تھی، جس پر سپریم کورٹ کے جج جسٹس این وی رامانہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے مسلسل 5 ماہ تک درخواستوں کی سماعت کے بعد 23 جنوری کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور اب عدالت کا کہنا ہے کہ کیس کو لارجر بینچ کو بھجوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی 80 لاکھ مسلمان کشمیریوں کو انصاف کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس این وی رامانہ نے آج فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ حل ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ اس پر فیصلہ دے چکی ہے۔ اب ایک نظر ڈالیں گے عالمی منظرنامے پر۔ جنوبی ایشیا میں امن کا راگ الاپنے والے امریکہ کا نیا کھیل شروع ہو گیا۔ امریکہ نے شام میں ترک اور شامی افواج کو مد مقابل کھڑا کیا ہے تاکہ تینوں مسلم ممالک کی لڑائی ہو اور دہشت گرد پھر سے متحرک ہو جائیں۔ امریکہ نے عراق اور افغانستان میں اپنے پاؤں اکھڑتے دیکھ کر شام کو نشانہ بنا لیا ہے، جہاں وہ ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھنے کے لیے سازشی ہتھ کنڈے اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں بھی امریکہ نے ایسے ہی مکارانہ ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہوئے پہلے ممالک کو لڑوایا، دہشت گرد تنظیموں کو قائم کیا اور پھر خود آ کر بیٹھ گیا۔ عراق، شام، افغانستان اور لیبیا اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ اب جبکہ عراقی حکومت نے امریکہ کو نکل جانے کا مشورہ دیا، وہاں شامی حکومت پہلے ہی اقوام متحدہ میں اس کے خلاف بے دخلی کی شکایت درج کرا چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں امریکہ نے ایک نئی سازش کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اس کا ہدف اسلامی ممالک ایران، عراق اور شام ہے، جبکہ اس کا نیٹو اتحادی ترکی اس منصوبے میں جانے یا انجانے میں استعمال ہو رہا ہے۔ شام کے تاریخی شہر ادلب میں جہاں سے لڑائی کا آغاز ہوا تھا، وہاں پر شام کی سرکاری افواج سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ایسے میں یہاں سے ہی امریکہ نے ترک افواج پر حملہ کرایا اور یوں دونوں کے درمیان ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا۔ یورپی میڈیا کے مطابق ترکی امریکی خفیہ اطلاعات کی روشنی میں شامی حکومت کے خلاف جنگ میں برسر پیکار ہے۔ یہ امریکہ کی ہی سازش ہے کہ ترکی اور شام میں شدید جنگ ہو اور دونوں ممالک کو شدید نقصان ہو اور پھر امریکہ کو یہاں پر مزید
मजीद अफवाज भिजवाने का मौका मैसर आए। बदकिस्मती से इस साजिश में अमरीका को अब तक तुर्की की मुकम्मल मावनत हासिल रही है। आलम इस्लाम के माहिरीन का कहना है कि अमरीका की कई साल से ख्वाहिश रही है कि इस्लामी ममालिक की ये बेल्ट कभी इकट्ठी न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो अमरीका का यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाएगा और ये इस्लामी ममालिक एक नई ताकत बनकर उभरेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये ममालिक आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाएं। तुर्क फिजाइया ने शाम की फिजाइया के 2 फाइटर तैयारे मार गिराए। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक शामी तैयारे हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तुर्की ने अपने दिफा में कार्रवाई करते हुए तैयारे तबाह किए। तुर्क फोर्सेस पर शामी अफवाज के हमलों के बाद तुर्की ने शामी सूबे अदली में ऑपरेशन स्प्रिंग शील्ड का आगाज कर दिया। शामी सूबे अदली में तुर्की ने शामी अफवाज के 2 तैयारे तबाह कर दिए। तुर्क वजारत दफा के मुताबिक ऑपरेशन गुज़िश्ता दिनों तुर्क फौज पर शामी फोर्सेस के हमलों के बाद शुरू किया गया। ऑपरेशन में शामी फौज के 2 रूसी साख्ता SU-24 लड़ाका तैयारे मार गिराए। तुर्की का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान तुर्की का एक ड्रोन तैयारा भी तबाह हुआ। शामी खबरसां इदारे ने 2 जहाज गिराए जाने की तस्दीक कर दी, ताहम वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुर्क हुकाम का कहना है कि तुर्की ऑपरेशन के दौरान अपने दिफा में शामी फौज और उनके इत्तेहादियों को निशाना बनाया जाएगा। शामी फौज के हमले रुकवाने के लिए रूस शाम पर दबाव डालेगा। वाज़ेह रहे कि 27 फरवरी को अदले में शामी फौज के तुर्क फोर्सेस पर हमले में 34 तुर्क फौजी जाँ बहक हो गए थे। तुर्की की तरफ से मुहाजिरीन की नकलो हरकत में नरमी के बाद मुहाजिरीन की सरहद तक पहुंच गए। यूनान और बल्गारिया ने तुर्की के साथ सरहदें बंद करके नफरी बढ़ा दी है। मुहाजिरीन के मुमकिना बहरान के पेश नजर यूनानी वजीर आजम ने हंगामी इजलास बुला लिया। तुर्की ने लाखों पनाहगुज़ीनों के लिए यूरोप के दरवाजे खोल दिए। हजारों अफराद यूनान की सरहद पर पहुंच गए। 76,300 से जायद पनाहगुज़ीन तुर्की से यूरोप के लिए रवाना हो गए। यूरोप ने पनाहगुज़ीनों को रोकने के लिए अपनी सरहदों को हाई अलर्ट कर दिया, जबकि यूनान और बल्गारिया ने तुर्की के साथ सरहदें बंद करके नफरी बढ़ा दी है। तारिकीन वतन की यूरोप में दाखिल होने की कोशिशों में सरहदों पर झड़पें भी हुई। इसके बावजूद 500 पनाहगुज़ीन यूनान की सरजमीन पर पहुंचने में कामयाब हो गए। हजारों अफराद को वापस धकेल दिया गया, जबकि 139 को हिरासत में ले लिया गया। दूसरी जानिब मुहाजिरीन के एक नए मुमकिना बहरान के तनाजुर में यूनानी वजीर आजम ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग तलब कर ली। बगदाद में कायम अमरीकी सफारत खाने के करीब रॉकेट हमले हुए हैं। हमलों के नतीजे में किसी भी जानी या माली नुकसान का ऐलान नहीं किया गया। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के ग्रीन जोन में कायम अमरीकी सफारत खाने को एक बार फिर रॉकेट हमलों का निशाना बनाया गया। सफारत खाने पर 2 रॉकेट फायर किए गए, जिसके नतीजे में ताहाल किसी किस्म का जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक रॉकेट नामालूम समत से फायर किए गए थे और अभी तक हमलों की जिम्मेदारी किसी ने भी कबूल नहीं की। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद से अब तक बगदाद के ग्रीन जोन में कायम अमरीकी सफारत खाने की तरफ मुतअद्दिद रॉकेट फायर किए जा चुके हैं। ग्रीन जोन में गैर मुल्की मिशन और सरकारी इमारतें मौजूद हैं। अमरीकी फौजी अड्डा और सफारत खाना भी इसी इलाके में कायम है। और अफगान मसले के हवाले से बात करें तो अशरफ गनी का बयान नजरअंदाज। बयानात नहीं, अमली इकदामात अहम हैं। इस वक्त सब तवज्जो लेने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान सदर के तालिबान कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक बयान पर माइक पॉम्पियो का रद्द अमल भी सामने आ गया है। अफगान सदर अशरफ गनी के तालिबान कैदियों की रिहाई से मुतालिक बयान पर माइक पोम्पियो ने रद्द-ए-अमल दे दिया। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि बयानात अहम नहीं, इक़दामात अहम है। इस वक्त हर कोई तवज्जो के लिए कोशिश कर रहा है। अफगान हुकूमत ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई है। हम किसी चीज पर यकीन नहीं करते। तालिबान को अमली इक़दामात से अपने वादों को पूरा करके दिखाना होगा। उन्होंने वाज़ा किया कि ट्रंप कागज पर किए गए वादों पर एतबार नहीं करेंगे, अमली इक़दामात देखेंगे। मुआहिदे का ताल्लुक किसी पर एतबार करने से नहीं है। हर चीज का दारोमदार अमली इक़दामात पर है। तालिबान ने अल-कायदा को अफगानिस्तान से निकालने में अमरीका के साथ ताउन की हामी भरी है। उन्होंने कहा कि मुआहिदे की जो दस्तावेज अवाम के सामने लाई गई वही मुकम्मल मुआहिदा है। इंट्रा अफगान मुज़ाकराती टीम के मामले पर इख्तिलाफात सर उठाने लगे। सदर ने हुकूमती टीम 8 मेंबरान तक महदूद रखने का ऐलान किया तो अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव ने सदर पर अजारादारी का इल्जाम धर दिया। कैदियों की रिहाई तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी बयान दे दिया। पहले कैदियों की रिहाई फिर मुज़ाकरात। तालिबान ने कैदियों की रिहाई तक मुज़ाकरात में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अफगान सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव इंट्रा अफगान मुज़ाकराती टीम के मामले पर इख्तिलाफात का शिकार हो गए। सदर अशरफ गनी ने हुकूमती टीम 8 मेंबरान तक महदूद रखने का ऐलान कर दिया। अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने मुज़ाकराती टीम में इख्तिलाफात पर सदारती महल पर अजारादारी का इल्जाम लगा दिया। 1 मार्च को होने वाले अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान तारीखी मुआहदे के तहत इंट्रा अफगान डायलॉग 10 मार्च तक शुरू करना लाजिम है। इन मुज़ाकरात में आइंदा अफगान हुकूमत की तश्कील समेत दीगर दाखिली मामलात पर बातचीत होगी, जिसमें मुख्तलिफ अफगान ग्रोहों की शिरकत मुतवक्की है। इन मुज़ाकरात का मकसद बाहमी इख्तिलाफात जंग की बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना है। इसी हवाले से बड़ी खबर भी आपको दे, पाकिस्तान ने अमरीका तालिबान मुआहदे के बाद बैनुल अफगान मुज़ाकरात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इंडोनेशिया की जानिब से बैनुल अफगान मुज़ाकरात की मेजबानी की पेशकश भी कर दी गई है।
नौ मुंतखब इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद तौफीक अलावी ने इरादा बदल लिया। काबीना की तश्कील के लिए पार्लियामेंट का इजलास मुनक्किद करने की 2 कोशिशें नाकाम हुई तो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की दौड़ से ही दस्तबरदार हो गए। इराक के नए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद तौफीक अलावी ने काबीना न बनाने का फैसला करते हुए सियासी पार्टीज के दबाव को अपने फैसले की वजह करार दिया। इराक के नए वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुल्क के सदर बरहम सोलेह को एक खत लिखकर काबीना की अदम तश्कील पर मबनी अपने फैसले से आगाह कर दिया। इराक के सदर ने मोहम्मद तौफीक अलावी के फैसले का एहतराम करते हुए ऐलान किया कि 15 दिन के अंदर सियासी जमातों से बातचीत करके नए वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान किया जाएगा। इससे कबल मोहम्मद तौफीक अलावी की काबीना को एतमाद का वोट देने के लिए पार्लियामेंट का 5वां इजलास भी कोरम पूरा न होने के सबब मुलतवी हो गया, जिसके बाद आज मोहम्मद तौफीक अलावी के पास अपनी काबीना की तश्कील के लिए आखिरी दिन था। सड़कों पर रश कम करने के लिए हुकूमत ने काबिल तहसीन इकदाम उठा लिया है। यूरोपीय मुल्क लक्समबर्ग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस ट्राम और ट्रेन को फ्री कर दिया गया है। यूरोपीय मुल्क लग्जमबर्ग दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने अवाम की सहूलत के लिए सफरी सहूलियात बिल्कुल मुफ्त कर दी। हुकूमत की जानिब से नए साल के पहले 61 दिनों में ही ट्रांसपोर्ट को मुफ्त कर दिया गया, जिसके बाद लग्जमबर्ग दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने अपनी अवाम की सहूलत के लिए कदम उठाया है। ट्रेन में सिर्फ फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों को टिकटें खरीदना होंगी। इस इक़दाम से सयाह भी यहाँ का रुख करेंगे। वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक बस और ट्रेन में मुफ्त सफर करने का मकसद लोगों को गाड़ियां छोड़ने पर मजबूर पर मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करना है। मुल्क में 61% अफराद अब भी जाती सवारी का इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत 2025 तक ये तादाद कम करना चाहती है। और तेज रफ्तारी का अंजाम खतरनाक भी हो सकता है। हवाओं से बातें करती तेज रफ्तार ट्राम गाड़ी सड़क किनारे खड़ी 4 गाड़ियों से टकरा गई। गाड़ियों का कचूमर निकल गया। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। सियासी मंजरनामे से आपको आगाह करें तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इस वक्त सियासी इंतकाम उरूज पर है। कोई नहीं मानता नवाज शरीफ करप्शन की वजह से जेल या लंदन में हैं। जमहूरियत पसंद कुव्वतें किसी न किसी वजह से मुत्तहिद नहीं। हैरानी की बात है कि शेख रशीद अभी तक वफाकी वजीर हैं। इस वक्त सियासी इंतकाम उरूज पर है। सियासी इंतकाम उरूज पर है और ना सिर्फ सियासी लोग मगर मुख्तलिफ इदारे से ताल्लुक रखने वाले लोग निशाने में हैं। सियासी इंतकाम अरूज पर है लेकिन हुकूमत का जो नैरेटिव है वो तो पहले दिन से टूटा हुआ था और आज कहीं नहीं करा है। कोई पाकिस्तान में मानने को तैयार नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में या लंदन में इसलिए है कि करप्शन की वजह से। कोई नहीं मानता कि कोई इस वक्त जेल में है या केसेस बनाए जा रहे हैं इसलिए वो करप्ट है। सब जानते हैं कि वो केसेस इसलिए बन रहे हैं कि सियासी इंतकाम चल रहा है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अमान ने कहा वजीर आजम के अमली इक़दामात के समरात अवाम तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मार्च में अशिया ज़रूरियत की कीमतों में मजीद कमी आने का इम्कान है। सोशल मीडिया पर ट्वीट में वजीर आजम की मुआविन खुसूसी ने लिखा, वजीर आजम महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। इमरान खान के अमली इक़दामात के समरात आवाम तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। CPI के मुताबिक खुराक की कीमतों में वाज़ेह कमी देखने में आई है। अशिया खुरनोश की कीमतें रवा साल जनवरी की 14.6% की शरह के मुकाबले में कम होकर फरवरी में 12.4% हो गयी। शहरी इलाकों में अशिया खुरनोश की कीमतें 13.4% जनवरी से कम होकर 11.2% फरवरी में हुई। देही इलाकों में 16.3% से कम होकर 14.2% पर आ चुकी हैं। ये कमी रोजमर्रा अशिया ज़रूरियत की कीमतों में भी देखने में आई, जिसका बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंच रहा है। खाने पीने की कीमतें जनवरी में 19.5% थी, जो फरवरी में कम होकर 15.2% हो गयी, जबकि खाने पीने से हटकर दीगर अशिया ज़रूरियत की कीमतें डबल से सिंगल डिजिट में आ चुकी हैं। मार्च में कीमतों में मजीद कमी आने का इम्कान है।
इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर चौधरी शुजात हुसैन से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन में 2 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने की। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को नोटिस जारी कर रखा था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से कोई भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से 26 मार्च तक जवाब तलब कर लिया है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की फी बैरल कीमत में मुसलसल कमी जारी है। हुकूमत की जानिब से महज 5 रुपए फी लीटर ही कमी की जा सकती है। इस पर अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं? अभी भी इन्होंने रेट कम नहीं किए, इन्होंने रेट बढ़ाए हैं। जो टैक्स पर लीटर था जो पहले ये चार्ज कर रहे थे उससे इन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया है। जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं वो तो बहुत कम है। इनको चाहिए कि ये तो 68 के करीब तो लेकर आए ना ब्रेक इवन पे। कुछ तो किया आपको, 5 रुपए कर दिए, अगर 5 पैसे कर दे तो आप क्या कर सकते थे? हुकूमत है, वो कहते हैं ना, द विजडम ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। व्हाट विजडम डू दे हैव? वन डे मे बी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विल टेल दी वर्ल्ड कि इतने 50 रुपए कम हुए थे, मैंने 5 क्यों किए? जिम्मेदारी चूंकि अब हुकूमत को आवाम ने दी हुई है, इलेक्शन में इसी हुकूमत को आवाम ने मुंतखब किया है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में पेशरफ्त करें। जो पेट्रोल की कीमतों की कीमत नीचे आई है उसका फ़ायदा आवाम को भी मिलना चाहिए और आवाम को रिलीफ जो है वो एक सब्सटैंशियल सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलना चाहिए। सिर्फ खाना पूरी नहीं करनी चाहिए और 5 रुपए कमी या ज्यादा से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मुल्क के मसाइल और दूसरे मुल्कों के मसाइल एक जैसे नहीं हैं। और मेरे ख्याल में तो होना चाहिए था 18% जो है कम से कम करना चाहिए कि आलमी मार्केट में $18 तकरीबन आ गया है, तो 18% यहाँ पे कम होना चाहिए था। बहुत बड़ा जुल्म है। कम से कम इनको 20-25 रुपए पर लीटर पेट्रोल सस्ता करके अवाम को रिलीफ देना चाहिए था, उस अवाम को जो अवाम पहले ही महंगाई से करा रही है और उसकी कमर टूट चुकी है। सेनेट इजलास में अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद। लीगी रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं कि हर इल्जाम साबिक हुकूमत पर लगा दिया जाता है। हुकूमत दबाव के सारे हरबे इस्तेमाल कर रही है, इख्तलाफ राय भी बर्दाश्त करे। वजीर तवानाई उमर अयूब ने भी अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कम से कम अगर ये जिंदा है तो फिर जिंदगी का सबूत भी दें और तनकीद को सुनने का हौसला भी पैदा करें और इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त भी करें। अभी जो पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे हुई हैं तो 5 रुपए की कमी आई है पेट्रोल और डीजल में। पहले यह था कि जी प्राइसेस नीचे हुई हैं, अभी जब प्राइसेस हमने नीचे की हैं तो शोरगुल शुरू हो गया। वफाकी इदारे शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर महंगाई के सरकारी एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। फरवरी 2020 के दौरान महंगाई की शरह में 1.4% कमी रिकॉर्ड की गई है। अदारा शुमारियात ने माह फरवरी के दौरान महंगाई की शरह के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक माह के दौरान महंगाई की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फरवरी 2020 में महंगाई की शरह में 1.4% कमी हुई। जारी दस्तावेज के मुताबिक फरवरी में महंगाई की शरह फरवरी 2019 के मुकाबले में 12.40% रही। अदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई तक फरवरी 2019-20 के दौरान महंगाई की शरह जुलाई तक फरवरी 2018-19 के मुकाबले में 11.70% रही। एक माह के दौरान महंगी होने वाली अशिया में सब्जियां, चीनी, फल और दालें हैं। दस्तावेज के मुताबिक एक माह के दौरान सब्जियों की कीमत में 13%, कुकिंग ऑयल 10%, चीनी 8%, फल 4% और दालें 2% तक महंगी हुई। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक माह में टमाटर 60%, अंडे 26%, LPG और बिजली 13% सस्ती हुई। इसी तरह से सब्जियां 11% और आटा 5% सस्ता हुआ। एक साल में प्याज 102%, दाल मूंग 84%, आलू 83%, सब्जियां 62% महंगी हुई। जबकि एक साल में गैस चार्जेस 55%, दाल माश 51%, मक्खन 43% महंगा हुआ। इसी तरह से एक साल के दौरान चीनी 37%, घी 34%, मोटर फ्यूल 27% महंगा हुआ। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल के दौरान दाल चना 24% और दाल मसूर 22% महंगी हुई। शुमारियात ब्यूरो से जारी दस्तावेज के मुताबिक एक साल में टमाटर 61, अंडे 10 और बिजली के नर्ख 4% सस्ते हुए। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का इलाज जारी है। चीन में मजीद 42 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ईरान में भी जानलेवा वायरस से मरने वालों की तादाद 54 हो गई। अमरीका में दूसरी हलाकत की तस्दीक हो गई। आलमी इदारा बराए सेहत का कहना है कि कोरोना मरीजों में शराए अमवात सिर्फ 2 से 5% है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। चीन में कोरोना से मजीद 42 हलाकतें रिपोर्ट हुई। चीनी हुकाम के मुताबिक 90% हलाकतें सूबा हबई में हुई हैं। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3000 हो चुकी है। ईरान में कोरोना से हलाकतें 54 से जायद, जबकि इटली में 30 अफराद हलाक हो चुके हैं। जनूबी कोरिया में कोरोना के मजीद 500 मरीज सामने आ गए, जिसके बाद कोरोना के शिकार अफराद की तादाद 4000 से तजावज कर चुकी, जबकि 4 मजीद हलाकतों के बाद जनूबी कोरिया में कोरोना से मरने वालों की तादाद 22 तक जा पहुंची। अमेरिका में कोरोना वायरस से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में भी एक शख्स हलाक हो गया। न्यूजीलैंड में भी कोरोना का मर्ज सामने आ गया। ताहम आलमी अदारा सेहत का कहना है कि कोरोना के मरीजों में शरह अमवात सिर्फ 2 से 5% है। WHO के मुताबिक वायरस 60 साल से जायद उम्र के लोगों को ज्यादा शिकार करता है या ऐसे लोग जिनकी सेहत पहले से खराब हो। आलमी अदारा सेहत ने अपील की है कि तमाम ममालिक कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बड़ी तादाद में वेंटिलेटर्स तैयार रखें और ऑक्सीजन सिस्टम की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। ईरानी हुकाम ने दहशत की अलामत बने कोरोना वायरस का मुकाबला करने की ठान ली है। सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी ने इंसदाद कोरोना का खुसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी ने कोरोना वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकने की ठान ली। मौजूदा हालात में दिफा में दुश्मन के कीमियाई और जरासीमी हमलों के मुकाबले में हासिल किए गए तजुर्बात से फायदा उठाने का फैसला कर लिया। सिपा पासदारान ने कोरोना के खिलाफ मुहिम का आगाज करते हुए कोरोना वायरस से बचाव और मुकाबले का मरकज कायम कर दिया। ईरान की वजारत सेहत के ऐलान करदा आदाद शुमार के मुताबिक ईरान में अब तक 978 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं, जिनमें से 175 अफराद सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। प्राइवेट स्कूल मालिकान ने सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। हुकूमत ने भी हुक्म अदूली करने वाले 150 स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मनसूख करते। हुकूमत के फैसले की खिलाफ वर्जी करने वाले प्राइवेट स्कूलों की शामत आ गई। डीजी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने कार्रवाई करते हुए 150 स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। रजिस्ट्रार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रफिया जावेद ने इंस्पेक्शन टीम के हमरा लियारी, कोरंगी, गुलशन हदीद, लांडी, जैकब लाइन समेत मुख्तलिफ इलाकों के स्कूलों का दौरा किया और खोले जाने वाले तमाम स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। इन तमाम स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को भी सिफारिश कर दी गई है। गुज़श्ता रोज सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के खदशे के पेश नजर एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए 16 मार्च तक तमाम स्कूल बंद रखने का फैसला किया था। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें मुतहर्रिक हो गई हैं। पाक अफगान चमन बॉर्डर भी 9 मार्च तक बंद कर दिया गया है। ताफ्तान सरहद के करीब क्वारंटीन सेंटर में ज़ायरीन की तादाद 2000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के हिफाजती इंतजाम जारी। स्कूल्स कॉलेजेस की बंदिश में तोसी का फैसला वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। कोचिंग सेंटर्स को भी अहकामात पर अमल करना होंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाक अफगान बॉर्डर भी 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। बॉर्डर बंद होने के नतीजे में आमदोरफ्त और तजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। उधर तफ्तार में पाकिस्तान ईरान बॉर्डर को आर्जी तौर पर खोला गया। इजाजत मिलने पर मजीद 1034 ज़ायरीन पाकिस्तान दाखिल हुए, जिसके बाद तादाद 2000 हो गई। तमाम ज़ायरीन को पाकिस्तान हाउस कंटीनिया सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि अब तक ईरान से आए किसी पाकिस्तानी में कोरोना की तस्दीक नहीं हुई। PDM में हुकाम के मुताबिक तमाम लोगों को मास्क, खैमे, कंबल और दीगर अशिया फराहम की गई हैं। पेशावर में कोरोना वायरस खतरा, रेस्क्यू 1122 सेंटर्स पर हिफाजती किट फराहम कर दी गई हैं। किट फराहम करने का मकसद रेस्क्यू एहलकारों का तहफ्फुज़ यकीनी बनाना है। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर और इस मर्ज से अवाम को बचाने के लिए रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने भी कमर कस ली। डायरेक्टर जनरल खतीर अहमद ने रेस्क्यू एहलकारों में हिफाजती किट तकसीम की। कोरोना वायरस से बचाव और हिफाजती तदाबीर के लिए इमरजेंसी किट्स, इमरजेंसी सेफ्टी किट्स तकसीम कर दी हैं। इब्तदाई तौर पर 120 किट्स एहलकारों में तकसीम की गई, जिसमें गाउन, मास्क, सर्जिकल ग्लव्स समेत सेफ्टी गॉगल्स शामिल हैं। इन सेफ्टी किट्स में सेफ्टी गाउन्स, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी मास्क, सेफ्टी ग्लव्स हैं सर्जिकल, इसी तरह शूज है। ये सारे अशिया रेस्क्यू 1122 के एहलकार किसी भी मुश्तबा मरीज को हॉस्पिटल मुंतकिल करते वक्त एहतियाती तदाबीर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक कोरोना वायरस से मुश्तबा मरीज को एम्बुलेंस में हस्पताल मुंतकिल करने के दौरान रेस्क्यू एहलकार किट्स का इस्तेमाल करेंगे, जबकि आज रेस्क्यू एहलकारों ने किट्स पहनकर फर्जी मशकें भी की। अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। जाली बैंक अकाउंट केस में नैब ने आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नया रेफरेंस दायर कर दिया। रिपोर्ट करेंगे असलम खोखा।
नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की। मुल्ज़िमान नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9A के ज़िली दफा 2, 4, 7 और 12 के तहत करप्शन के मुर्तकिब हुए हैं। मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक ट्रायल करके सख्त सजा सुनाई जाए। रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर इल्जाम आयद किया गया है कि आसिफ जरदारी को बतौर सदर लीबिया और UAE से गाड़ियां तोहफे में मिली। आसिफ जरदारी ने गाड़ियां तोशा खाना में जमा कराने की बजाय खुद इस्तेमाल की। उन्होंने गाड़ियों की सिर्फ 15% अदायगी अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद के जरिए की। अनवर मजीद ने इंसारी शुगर मिल्स के अकाउंट्स का इस्तेमाल करके 2 करोड़ से ज्यादा की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की। मुल्जिम ने आसिफ जरदारी के अकाउंट्स में भी 9.2 मिलियन रुपए ट्रांसफर किए। अब्दुल गनी मजीद ने 37 मिलियन रुपए कस्टम कलेक्टर इस्लामाबाद को ट्रांसफर किए। नैब ने रेफरेंस में नवाज शरीफ पर इल्जाम आयद किया कि नवाज शरीफ 2008 में किसी भी ओहदे पर नहीं थे। उन्हें 2008 में बगैर कोई दरखास्त दिए तोशाखाना से गाड़ी दी गई। इश्तिहारात के गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस में यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर मुल्जिमान की अदम हाजिरी की वजह से फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर नैब को जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी कि इसकी समाअत एहतसाब अदालत के जज आजिम खान ने की। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, इनाम अकबर समेत दीगर मुल्जिमान पेश नहीं हुए, जबकि साबिक PIO सलीम बेग अदालत के रूबरू पेश हुए। शरीक मुल्जिम फारूक अवान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी, जबकि नैब ने बरियत की दीगर दरख्वास्तों पर जवाब अदालत में जमा नहीं करवाया। वकील सफाई ने इस्तदा की कि अदालत नैब को आइंदा समाअत तक जवाब जमा करवाने का पाबंद बनाए। केस की मजीद समाअत 24 मार्च को होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बाग इब्न कासिम की जमीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने के रेफरेंस में प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज और उनके दामाद जैन मलिक की दोबारा तलबी के नोटिस जारी करते हुए 20 मार्च को पेश होने का हुक्म दे दिया है। मोहम्मद असलम खोकर रिपोर्ट करेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने बाग इब्ने कासिम की जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट के रेफरेंस पर समाअत की। नैब की जानिब से मुल्ज़िमान की तलबी के समन से मुतालिक तामीली रिपोर्ट पेश की गई। नैब तफ्तीशी अफसर की जानिब से बताया गया कि मलिक रियाज और जैन मलिक बैरून मुल्क हैं। समन की तामील नहीं हो सकी। मुल्ज़िमान से मुतालिक इतना तो पता चला है कि दुबई गए हैं, आगे कहाँ गए पता नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान को समन की तामील कैसे कराएंगे, ढूंढे कहीं से भी मुल्ज़िमान का पता करें और दोबारा समन की तामील करवाएं। शरीक मुल्ज़िम डॉक्टर डिनशा के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मलिक रियाज आपने किसी काम से बैरून मुल्क गए हुए हैं, वापस आ जाएंगे। बड़े बिजनेसमैन ऐसे मुकदमा से घबराते नहीं। मुल्ज़िमान के वारंट्स जारी करने की बजाय एक बार फिर समन भेजकर देख लें। अदालत ने चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज और उनके दामाद जैन मलिक को दोबारा तलबी के नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने नैब को तमाम मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत तक रेफरेंस की नकूल फराहम करने का हुक्म भी दे दिया। मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने GSQ के मुताबिक इस मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने GSQ का दौरा किया और सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इस दौरान बामी दिलचस्पी, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में टिकटॉक की बंदिश के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। पैमरा ने तहरीरी जवाब दाखिल करवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने दरख्वास्त पर समाअत की। पैमरा ने अपना तहरीरी जवाब दाखिल करवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पैमरा सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद चला हो तो दरख्वास्त गुजार पैमरा से रुजू करे। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्क में गंदम के बहरान की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, वजीर आला पंजाब जहांगीर तरीन और वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार से जवाब तलब कर लिया है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने मुल्क में गंदम बहरान के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत की। तहर महमूद नामी शहरी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में वफाकी और पंजाब हुकूमत, DGFIA, वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गंदम के बहरान की वजह से मुल्क में आटे की कीमत में इजाफा हुआ। अदालत गंदम बहरान के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाए जो इस बात की तहकीकात करे कि गंदम बहरान की वजह से किसको फायदा हुआ। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पहले फरीकैन की जानिब से जवाब आने दें। अदालत ने समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। इंसानी जज्बों के सच्चे शायर नासिर काज़मी को बिछड़े 48 बरस बीत गए। किसी ने दौरे जदीद का मीर कहा तो किसी ने दुखी रूह का खिताब भी दिया। इमारतें तो जल के राख हो गईं, इमारतें बनाने वाले क्या हुए। अकेले घर से पूछती है बेकसी, अकेले घर से पूछती है बेकसी, तेरा दिया जलाने वाले क्या हुए। ये आप हम तो बोझ हैं जमीन का, ये आप हम तो बोझ हैं जमीन का, जमीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। खुशी मेरी जिंदगी कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। पहले सेहत बनाएं फिर काम करें। जी हां, रूसी अरकान पार्लियामेंट ने अपनी तरजीहात सेट कर ली। काम से पहले वर्जिश शुरू कर दी क्योंकि जान है तो जहान है। चीन में मौसम बहार की आमद के साथ ही हर सू फैले रंग बरंगे फूलों ने सहरंगेज नजारे बखेर दिए हैं। फिजा में महकती फूलों की खुशबू के खूबसूरत एहसास ने सहरतारी कर दिया है। चीन में चेरी ब्लॉसम के फूल खिल उठे हैं। अब तक की अहम खबरें आपने मुलाहिजा फरमाई। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।